मन हमारा टूटेगा। It's a very proud moment for the आंगनवाड़ी फेडरेशन एंड और आंगनवाड़ी मूवमेंट। हमारे लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है कि अभी हमारे रिपब्लिक का 75वां साल मना रहे हैं और आईसीडीएस का 50 इयर्स मना रहे हैं। तो इस ओकेशन में हमारे साथ आने के लिए यहाँ पे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट है और वो उनका स्वागत करने के लिए हम इधर खड़े हैं। और साथियों, हमारे लिए बहुत ही गर्व है और वी आर थैंकफुल ऑल्सो टू ऑनरेबल जस्टिस Ajay Rastagi, former judge of the Supreme Court of India, and the judge who was in the bench of the landmark judgment on the gratuity of Anganwadi workers and helpers. On behalf of all of you, Comrade, I welcome Dr. Hemlata, President of CHU and also former General Secretary of All India Federation of Anganwadi. And I welcome Advocate P.V. Surendranath. He is a senior advocate in the Supreme Court and also he is the General Secretary of All India Lawyers Union and also he was advocate of our union for that landmark case. So I welcome him also on behalf of the and I welcome Professor Deepa Sinha. Deepa need not introduce to you. So she is always with us. कि हमारे हर लड़ाई में सड़क में भी हमारे साथ में है और वो इकोनॉमिस्ट कहलाना नहीं चाहती है, वो एक्टिविस्ट कहलाना चाहती है राइट टू फूड कैंपेन का एंड शी इज अ प्रोफेसर ऑल्सो। तो वी वेलकम हर ऑल्सो और आई वेलकम ऑल द ऑफिस बेरर्स ऑफ द आंगनवाड़ी फेडरेशन our comrade Arun Mehta. I just forgot. I am so sorry because we never thought that he is not a part of us. He is a part of our Anganwadi Federation from the beginning and he is the president of our Anganwadi Union in Gujarat and he is also the president of the CITU in Gujarat and he is a very senior lead, General Secretary of CITU and he is a very senior trade union leader also and he is always a part of our federation and our struggles. I welcome him on behalf of all of you. And I welcome Usha, our president of our federation, and all our office bearers and our working committee members from 14 states are here. So I welcome all of you. And we have our main activists from Punjab and Haryana and Uttar Pradesh also. Some more comrades are here. And we have mass organization leaders and some journalists also. And the senior leaders of CITU also. I welcome everybody on behalf of you. And I would like to introduce just a few words about Justice Ajay Rastagi also because many people may not be knowing. So, see, Justice Ajay Rastagi started his legal profession as an advocate in 1982 and practiced in Rajasthan High Court in constitutional, civil service and labour matters. His field of specialization is service and labour law. In case I am wrong, sir, you can correct. He became a judge in Rajasthan High Court in 2004. He became Chief Justice of Tripura for a short period in 2018 from March. And same year he was appointed judge in the Supreme Court of India in November 2018. And he rendered his services to the nation in that capacity till he retired on 17 June 2023. And over the course of his tenure in Supreme Court, Justice Rastagi authored 158 judgments. On behalf of, once again, on behalf of 5 lakh members of All India Federation and all the Anganwadi workers and helpers also, lakhs of workers, women workers of the country, once again I welcome him to this seminar and by accepting this invitation, he once again हमारे ये जो इन्विटेशन एक्सेप्ट करके हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे जो ये मोस्ट डाउनट्रॉडन लोगों का ये ट्रेड यूनियन है, इसी में हमारी ये जो इनविटेशन के लिए उन्होंने इधर आया है, आप सबकी तरफ से एक बार और मैं बहुत ही दिल से स्वागत करते हैं और आंगनवाड़ी फेडरेशन इसमें ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि आसो पार्ट ऑफ आवर celebrations of golden jubilee of ICDS. This next year to 2nd October 2025
ICDS will complete 50 years, 50 साल पूरा होने जा रहे हैं। तो हमने 2 अक्टूबर 2024 से अपना पूरा साल भर का अपना कार्यक्रम और आंदोलन अपने हकों के लिए और बच्चों के और माओं के हकों के लिए वो प्लान किया है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा डिपार्टमेंट ये चीज़ भूल गया है और डिपार्टमेंट हैज़ नॉट एट started even speaking about the silver golden jubilee of the ICDS। तो इस ओकेशन में उसका पार्ट है ये सेमिनार। और एक्चुअली दिस सेमिनार इज ऑन द लीगल एंटाइटलमेंट्स ऑफ जो कानूनी हक जो नॉट ओनली आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स वर्कर्स होने के नाते और बच्चे और माएँ हैं उनका भी कानूनी अधिकार। आई वुड लाइक टू इनवाइट Comrade Varalakshmi to say shawl as a token of our respect implemented. And our Gujarat comrades have specially brought some memento also. I invite Comrade Kailash and Nazim Ben also and Comrade Arun Mehta to please. We respectfully invite Justice Ajay Rastagi to deliver the inauguration. सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि I should speak in English or in Hindi, which is more better for me. Both. So I'll make a mix. Good morning to all of you present here. I'm very thankful to the organizers who have called me, have given me this opportunity to address. I have addressed so many meetings, so many seminars, so many symposiums. But when I look into the gathering here, who are in the audience, it is somewhere different than the normal audience to which we normally address. And it reminds me only that sisters, mothers have a talent. People may or may not acknowledge, people may or may not recognize, but the talent which is in front of me, serving the downtrodden, serving the marginalized section of society, is really appreciable and we must accept with all. मैं किसी यूनियन से नहीं हूँ, मेरा किसी यूनियन में इंटरेस्ट भी नहीं है। मेरा इंटरेस्ट केवल एक है कि हम जिस रूप में सोसाइटी को सर्व करते हैं, जो सोसाइटी हमसे अपेक्षा करती है, हम उसमें खरे उतर पाए हैं कि नहीं, ये देखने का समय। आप जाएंगे 2 अक्टूबर 1975 was the day on which it was established. It was an auspicious day, Gandhi Jayanti. And it reminds me that this day was selected only with the mission that Gandhian philosophy, Gandhian principles, Gandhian ideology must be accepted by the people at large of this country. The largest population of this country in a democratic setup is really alarming. More than 140 crore people of this country, difficult to accept the challenges.
But Anganwadi workers are working not tremendously. They are working very arduously with mission. When I look into the data, the child from 0 to 6, the mothers, lactating mothers, pregnant women, I find no difficulty in accepting that by and large they are neglected. But आंगनवाड़ी workers ने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि जिनको सोसाइटी नेग्लेक्ट करती है, नेग्लेक्ट इज नॉट द सेंस इंटेंशनल, उनकी इंपॉर्टेंस को नहीं दरकिनार करती है, उसे आंगनवाड़ी मिशन अपना पूरा करके दिखा सकते हैं। किसी ने कहा है कि अगर किसी एक व्यक्ति को आप किसी फैमिली में एजुकेट करते हैं तो व्यक्ति ही एजुकेट होता है, और अगर आप किसी फीमेल को एजुकेट करते हैं तो परिवार एजुकेट होता है। योर एजुकेशन इज नॉट इंडिविजुअल टू योरसेल्फ, योर एजुकेशन इज एजुकेटिंग द फैमिलीज, एंड वन फैमिली कंसिस्ट ऑफ normally 4 or 5 people or 6 people. Now you multiply by 6. If every woman goes with this mission, multiply by 6 goes almost the same number, because the ratio of gender is almost the same nowadays, which political parties are also very keen about to know it. अगर आपसे पॉलिटिकल सिनेरियोस देखेंगे, आज हर पॉलिटिकल पार्टी, आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, उनका ये मिशन है कि हम विमेन को या फीमेल को वो राइट्स या उनके राइट्स के बारे में उजागर करें, क्योंकि उनका वोट बैंक आज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया एंड एवरीबडी वांट्स। और आप देखेंगे डेटा आ रहे हैं, इन एवरी इलेक्शन women percentage is this and the male percentage is this. हमने कहीं पहले नहीं देखा है। It's good that we have been able to realize ourselves that my right which conferred to me under the Constitution, my franchise which with me, must be appreciated and acknowledged by the people at large. Otherwise, if I go to my time, when I was a child, normally father कहा करते थे क्या होना है, and that thing is being followed in the family. Mother by and large they have no right of say. They were only executing what are the wishes, either of your husband, either of your children, either of your in-laws or grand-in-laws, whatever you call them, but no individual right to think, right to process, right to implement. But आज within 40 years or 50 years of the change, the right has come to implement our own decision, not on yourself, on the families. And I think आंगनवाड़ी workers ने जो अपना एक सिनेरियो बढ़ाया, इसको बढ़ाया वर्क करने का, उससे दुनिया को देखा, दुनिया को समझा और ये जानने की अपेक्षा रखी कि आज की तारीख में ग्राउंड रियलिटीज क्या है और उनको इम्प्लीमेंट करके दिखाया। मैं आपके डेटा देख रहा था कि 50 साल के वर्किंग के बाद भी आज आपके पास 13.9 लाख ऑपरेशनल आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं और 8 करोड़ चिल्ड्रन और 2 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स को आपकी सर्विस अभी प्रोवाइड हो चुकी है। बट व्हाट इज मिसिंग इज 16 करोड़ चिल्ड्रन। मे बी दिस डेटा आई डोंट नो फ्रॉम व्हाट द डेटास आर। मैं कहना ही चाहूंगा आपसे कि सब कुछ करने के बाद भी, 50 साल के मिशन कंप्लीट होने के बाद भी, शायद कहीं ना कहीं हम ग्राउंड रियलिटीज को पकड़ नहीं पाए।
समाज की डिमांड को, समाज की रिक्वायरमेंट को, समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने में जो आपका मिशन है वो बड़ा कारगर है, बट इसमें और कुछ करने की आवश्यकता है। आपने अपना डिमांड्स, आपके राइट्स, आपकी बेटर सर्विस कंडीशंस आप जरूर करें, ये हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। And I don't want to comment to what extent it may be permissible, it may be admissible under the parameters of law. But ये जो सेमिनार्स आपकी होती है, इसमें एक बात जरूर आप ध्यान रखें, अपने राइट्स को ध्यान में रखते हुए, अपनी सर्विस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए जरूर ध्यान रखें कि जहां हम हैं और 50 साल में कार्य करने के बाद जहां हम खड़े हैं, उसमें क्या तब्दीली करने की आवश्यकता है जिससे हम ग्रास लेवल पर पहुंच सकें। और मैं चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट को भी कहना कि आप इनके राइट्स को एग्जामिन करें, बट ये आपसे कहना चाहूंगा कि आप ये भी एग्जामिन करें कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं आपकी जॉब के साथ, उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, और गवर्नमेंट को आप सजेशन दें कि एग्जिस्टिंग फॉर्म में क्या चेंजेस किए जाएं, क्या अमेंडमेंट हो जिससे हम ग्रास रूट लेवल तक पहुंच सकें। और जो नेग्लेक्टेड सोसाइटी हमारे यहाँ है अभी, जो आपके कार्य के बावजूद हम वहां नहीं पहुंच सके, वहां पहुंचने की कोशिश कर सकते। और आपका एक्सपीरियंस, आपका विजन, certainly in my view will be very important for the government to take inputs and to make amendment in the scheme so that they can reach to the ground level and fulfill the dreams of the people. जब तक आप ये नहीं कर पाएंगे, हमारी कॉन्फ्रेंसेस, हमारे सेमिनार्स सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ग्रेचुटी का हवाला दिया गया, मैंने डिसाइड किया, जो भी विवेक से किया, ये जान के नहीं किया कि किसका फायदा है किसका नुकसान है, ये समझ के किया कि जो व्यक्ति अपना पूरा समय समाज के लिए लगाता है, बिना पर्सनल कंसिडरेशन के लगाता है, अपनी सेवाएं दे रहा है, उसको ग्रेचुटी मिलनी चाहिए, उसकी सर्विस कंडीशंस का प्रोटेक्शन होना चाहिए, उसको वो सभी अधिकार मिलने चाहिए जिससे उनको एक सोशल प्रोटेक्शन मिल सके। व्यू may be acceptable, व्यू may not be acceptable, but this is a fundamental principle कि जो भी व्यक्ति समाज को सर्व कर रहा है, उसकी सर्विस का प्रोटेक्शन गवर्नमेंट को करना चाहिए। किस रूप में होगा, किस परिवेश में होगा, किन कंडीशंस के साथ होगा, कितने राइडर्स के साथ होगा, इट इज फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड। बट वन वे और द अदर it has to be implemented, it has to be documented। और ये जब पॉसिबल है जब आंगनवाड़ी का जो ये स्कीम है ये इंस्टीट्यूशनलाइज होगी। तो माय कंसिडरेशन आपको एम्फसाइज ये करना है, नॉट एज ए डिमांड, नॉट एज ए प्रोटेस्ट, टू आस्क द गवर्नमेंट टू एग्जामिन when you have so many schemes institutionalized by you by passage of time, after examining that, look here, these people are become a part and parcel of the system as such and they can't be ignored. Their valuable services has now been time tested and acknowledged by passage of time.
जिस दिन आप अपनी इस स्कीम को इंस्टीट्यूशनलाइज करा देंगे, उस दिन से आपके राइट्स प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली फ्लो करेंगे। आज के समय में sometimes I put a question to myself. Do you think for a global changes in the country, we want commercial growth, financial viability, financial strength, political parties आप देखते होंगे GDP के बारे में बहुत बात करते हैं. But this is one part of the coin which we must have a shining India. Nothing wrong. It's very good. We are all part and parcel of it. पर आज भी हम उसी परिवेश में बात करते हैं मकान की, उसी पे बात करते हैं एजुकेशन की, उसी में बात करते हैं कपड़े की. इसका मतलब यह है कि आज 75 इयर्स होने के बाद भी हमारी बेसिक नीड ऑफ द पीपल दे आर नॉट बीइंग एबल टू रीच. मेनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट काम कर रही है, दे आर डूइंग, बट लुकिंग टू द लार्ज पॉपुलेशन इस काम को डबल द ग्रोथ करना पड़ेगा. People can't wait. We can't have a patience. We have to see that things must come on the floor, come on the ground within the shortest period during our lifetime. हमें अपनी स्कीम्स को हमारे समय में इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं, कामयाबी हासिल करनी. हम रोटी कपड़ा मकान के लिए कंटेस्ट करे जा रहे हैं. गवर्नमेंट कहती है हमने मकान बना दिए, गवर्नमेंट कहती है हमने अच्छा किया, मगर इट इज नॉट सफिशिएंट. तो दोनों इंडिया का आपने फेस देखा, द शाइनिंग फेस एंड अदर फेस ऑफ द कॉइन. हमें दोनों फेसेस को साथ चलाना है. ग्रोथ ऑफ द कंट्री इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल गिव फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, it will give a global recognition, but at the same time a poor man who nobody listens for him, nobody cares for him. Who cares? The Anganwadi workers care. उनकी स्ट्रेंथ को आपको आगे ला करके उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा करना है जहां उनकी डिमांड और रिक्वायरमेंट को आप पूरा कर पाए. हर व्यक्ति हेल्थ की बात करता है. हेल्थ इज अ प्राइमरी कंसिडरेशन फॉर ऑल एंड वी मस्ट सी दैट एवरीबॉडी मस्ट गेट द मिनिमम हेल्थ केयर एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम. बट आज की तारीख में हेल्थ केयर स्टिल पुअर इन आवर कंट्री. वी डिमांड मच मोर. मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग सब मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को, डाउन रूरल सेक्शन को सर्व करते हैं. उनकी हेल्थ कंडीशंस बहुत पुअर है. आपने उनको बहुत नजदीक से देखा है. आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, उसको डॉक्यूमेंट बनाएं, उसके डेटा क्रिएट करें और गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे रखें. उन्हें बताएं कि अगर आपको इस कंट्री की हेल्थ कंडीशन सुधारनी है तो कौन कौन से पॉइंटर्स पे आपको चेंज करना पड़ेगा. एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट की मशीनरी में काम करते हैं उनके पास डेटा होते हैं, एक्सपीरियंस भी होता है, और ग्राउंड रियलिटी नहीं होती. उनके एक्सपीरियंस में और ग्राउंड रियलिटी में बहुत फर्क है. आपके पास ग्राउंड रियलिटी है, उनके पास एक्सपीरियंस है. अगर ग्राउंड रियलिटी और एक्सपीरियंस साथ मिल जाएंगे और ये मिशन मोड पे काम करेगा तो आई एम श्योर जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ है, विमेन की लैक्टेटिंग मदर्स है या एजुकेशन है, उस पे इफेक्टिवली काम हो पाएगा.
बहुत सारे चैलेंजेस आपको मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, ट्रेनिंग है, जिसपे गवर्नमेंट को देखने की जरूरत है। मगर मैं कहना चाहूंगा, ऐसी बात में मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, कि हमें देखना ये नहीं कि गवर्नमेंट को क्या करना है, हमें ये देखना है कि हम within our own available resources what better can be done by us and how we can perform our duties better and meet the requirement and the demand of the common man and the society at large. अगर ये करने में हम सक्षम रह पाएंगे और कर पाएंगे तो this will be a great contribution to the society and great contribution to the nation. मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं चाहूंगा कि आप इसी तरीके से अपनी सर्विसेज देते रहें और अपनी डिमांड को भी इस गवर्नमेंट के सामने रखते रहें। शायद आज तो कल गवर्नमेंट आपकी डिमांड को जरूर पूरा करें। The services that the Anganwadi provides will be required forever and it is the duty of the state to provide these services. तो ये तो एक हम किसी टीचर से कम नहीं है, ANM से कम नहीं है, जितना वो है हम भी हैं और वही दर्जा हम लोगों को मिलना चाहिए। So and I think these judgments जो अभी आए हैं, जो आंगनवाड़ी को रेगुलराइज करने की बात कर रहे हैं, that is taking us one step towards it. पर जैसे कॉमरेड सिंधु ने कहा, ऑलरेडी कुछ लीगल बेसिस है जिसको लेकर हम लोग ये लड़ाई लड़ सकते हैं कि हम रेगुलराइज हो। देयर इज ऑलरेडी अ लीगल बेसिस टू से दैट ICDS इज नॉट अ स्कीम एनीमोर। पहले तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में क्लियरली दिया गया है कि एक जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इज नाउ अ लीगल एंटाइटलमेंट फॉर चिल्ड्रन अंडर 6, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वीमेन एंड इट हैज टू बी डन थ्रू आंगनवाड़ी। तो अगर कानूनी हक है कि बच्चों और माताओं को खाना मिले, तो जिस सेंटर के तहत ये खाना दिया जा रहा है वो भी तो कानूनी अधिकार ही बना ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ वो पैकेट कानूनी हक है लेकिन वो केंद्र नहीं है। तो कानून में ऑलरेडी है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में ये जरूर है कि अंडर 6 का क्लियरली बताया नहीं गया, लेकिन अभी NEP आप लोग सब सुन ही रहे होंगे, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी जो प्री स्कूल की बात हो रही है। अगेन आंगनवाड़ी इज प्लेइंग द मेन रोल इन इट। प्री स्कूल इसको हमेशा चलना पड़ेगा। तो अगेन इट इज there legally somewhere in the framework. We have to think about how all these can be brought together so that it strengthens our position as well. कि NFSA में है, एजुकेशन में है, शायद एक और कानून की जरूरत है ECCD के लिए, वो हम सोच सकते हैं, पर फिर भी अपने लड़ाई में क्लियर रहें, जो आप लोग हैं भी, कि ये कोई स्कीम वीम नहीं है, ये बिल्कुल मतलब स्थायी है और स्थायी होना पड़ेगा। पर इसको स्कीम क्यों कहते हैं? फिर स्कीम इसलिए कहते हैं, उसके पीछे यही राजनीति है कि ना सिर्फ जो काम आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर करते हैं, महिलाएं जो काम करते हैं उसी की कोई पहचान नहीं है, और महिलाओं के काम को नहीं पहचानना बहुत सुविधाजनक है। मतलब इट इज कन्वीनियंट फॉर द स्टेट एज वेल एज द मार्केट टू नॉट रिकॉग्नाइज द वर्क दैट वीमेन डू, बिकॉज दैट कीप्स थिंग्स चीप। जो हम सब्सिडी की बात करते रहते हैं कि फार्मर को सब्सिडी देते हैं, स्टूडेंट को सब्सिडी देते हैं, सबसे बड़ा सब्सिडी इस देश में महिलाएं दे रही है सरकार को, महिलाएं दे रही है कंपनियों को। कैसे दे रही है? कि जो पूरा घर का काम है, घर में बच्चों का देखभाल करना, दूसरों का देखभाल करना, खाना बनाना, सफाई करना, all the domestic work and the caregiving activities that women do for free, unpaid, which is not recognized as work, जिसको हम काम का दर्जा नहीं देते हैं, वो इस समाज के तहत एक सब्सिडी है जो महिलाएं कर रही हैं। Now I request Advocate PV Surendranath, General Secretary AU and Senior Advocate in Supreme Court, and he was an advocate of our Gujarat Union in that gratuity case. Gratuity case में गुजरात का यूनियन ने जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा है, तो ये कॉमरेड जो है वो ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी भी है और हमारे सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट भी है। वो केस उन्होंने लड़ा है जो जीता है हमने, तो उनको with request that we can give us some direction in the future course of action vis-a-vis the legal thing.
I'm sorry that I am not able to speak in Hindi, so bear with me. Only 5 minutes I will take. Don't worry. See, one important aspect I have to mention, that is, don't expect this much favorable judgment from the Supreme Court every now and then. See, this judgment is important because nowadays courts are swayed in favor of the capitalists, employers and government, particularly this era of immediate globalization. All interpretation given by eminent judges, including Krishna Iyer, in favor of laborers, employees, in the matter of minimum wages, in the matter of payment of wages during dispute proceedings, in the matter of suspension period, reinstatement issue, punishment for a simple, lighter misconduct. Now punishment is permitted, that maximum punishment of dismissal or termination is permitted. That is the usual judgment coming from High Courts and Supreme Court. It is in this particular era, somebody was referring to 75, this is a fact. So that is the importance of the judgment. And really the judge today was happy, was enjoying this platform, because usually when we pass judgment, when we successfully contest a matter as a lawyer, we won't see the actual fruits, we won't see the actual beneficiaries. But today he was enjoying the situation, enjoying this moment, because he personally sees these beneficiaries and your love and affection. So dear friends, that is my first thing, this point. So whatever be the judgment you may get, sometime positive judgment, make use of the judgment for your education purpose and to organize better organization and to attract other like persons, maybe ASHA workers, or midday workers, whatever. So that is the importance of judgment. And based on that judgment, now it's already referred to, that Gujarat High Court has given yet another positive judgment in the matter of regularization. That your right is now crystallized as far as Gujarat is concerned, Gujarat High Court, those single judge. He said that you are eligible for treatment at par with government employees, regular government employees. That means you are eligible for time scale, pay scale of a government employee, whether it's chart 3 or class 4, that of course the government has to decide. So after saying that you are eligible for such a treatment, now the government is directed to take a decision within 6 months as to a scheme for regularization or absorption, and to fix which category, whether class 3, class 4, what exactly the designation of the post, that the government has to decide. कॉमरेड ने जो बोला है आपको बहुत सारे समझ में नहीं आया, तो वो थोड़ा संक्षिप्त में हिंदी में अभी मैं आमंत्रित करूंगी कि हमारा प्यारे कॉमरेड अरुण मेहता, वो हमारा गुजरात CITU जनरल सेक्रेटरी है और CITU अपनी आंगनबाड़ी यूनियन की प्रेसिडेंट भी है। वो ये लड़ाई में मुख्य भूमिका किया है, पूरे वहाँ पे हाई कोर्ट में लगाने के लिए भी और सुप्रीम कोर्ट में लगाने के लिए भी कॉमरेड अरुण मेहता। Our President, Comrade Hemlata ji,
बहुत ही हिस्टोरिक जजमेंट के लिए कॉमरेड सुरेंद्र नाथ जी हमारे सीनियर लॉयर हैं। मैं भी लॉयर हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सीनियर लॉयर। अदरवाइज हमारे कॉमरेड है, ऑल इंडिया लॉयर यूनियन चलते आए हैं, उनके मेन ऑफिस पर प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी है कॉमरेड सिंधु जी, कॉमरेड उषा जी, कॉमरेड मरियम, कॉमरेड उमेश जी और सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स। मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट फिर से करूंगा कि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन जो हमने किया है, उसने ये सवालों को लेकर इनिशिएट इमीडिएटली किया। इसके लिए मैं पहले कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जब आया ग्रेच्युटी का, तब भी हम लोग एक फंक्शन किया था। बाद में अभी गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट आया, उसमें भी हम इनिशिएट किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो वही है कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम जी रहे हैं, ये चुनावी राजनीति में जी रहे हैं, इसलिए हमारे लिए एक ही रास्ता है। हम ये जजमेंट को, कॉमरेड सुरेंद्रनाथ जी भी बताया, उदारीकरण की नीतियों को चलते अभी बहुत कोर्ट पे अपेक्षा रखेंगे, ये ठीक नहीं होगा। हम हर चीज का इस्तेमाल करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करेंगे, मजबूत बनाएंगे, तभी तो ये जजमेंट का फायदा मिल सकता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत नहीं किया तो ये कितने भी जजमेंट हमारे गुजरात हाई कोर्ट ने और बाद में एक सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स टर्म एम्प्लॉय के लिए जजमेंट दिया, 10 साल हो गए इम्प्लीमेंट गुजरात सरकार ने नहीं किया है। और हम लोग ये जजमेंट लिया ग्रेच्युटी का, हम लोग मूवमेंट किया, डेमोन्स्ट्रेशन किया, 2 दिन का स्ट्राइक किया। क्यों? क्योंकि ये जजमेंट को इम्प्लीमेंट करो, और वो जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के बाद ये किया, तो आज हम खुशी से कह सकते हैं, हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन गौरव ले सकता है कि गुजरात में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तब से आज तक में जो भी रिटायर हुई आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर, चाहे वो 20 साल पहले रिटायर हुई है तो भी, टोटल लमसम अभी 200 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट को फोर्स किया है पे करवाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट हमको इस्तेमाल करने में बहुत उपयोगी हुआ, हिस्टोरिक जजमेंट है। लेकिन अगर मूवमेंट नहीं होता गुजरात में, तो आंगनवाड़ी वर्कर को 10% इंटरेस्ट के साथ ग्रेच्युटी मिला है। मतलब कि हर आंगनवाड़ी को लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, एक में 4 लाख है। तो इसका मतलब, लेकिन इससे सुरेंद्रनाथ जी ने जो कहा वही सही है कि ये उदारीकरण के दौर में कैपिटलिस्ट और पूंजीवादी सरकार के चलते अगर हम कुछ कोर्ट से ज्यादा अपेक्षा रखेंगे, वो सही नहीं है। यस, वी गॉट इट सम जजमेंट, हमें जजमेंट मिला तो उसका इस्तेमाल करेंगे, और हमारा तो मतलब स्पष्ट है। CHU की प्रेसिडेंट और हमारी आंगनवाड़ी फेडरेशन की जो फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी है कॉमरेड हेमलता, हम उनको आमंत्रित करते हैं कि वो इसका अपना अध्यक्ष भाषण दें। कुछ मैं याद दिलाना चाहती हूँ। अभी जो साथी ने बताया, मतलब हमारे जज से लेकर जो जज बोले हैं, और उसके बाद कॉमरेड दीपा सिन्हा भी बोली है, कॉमरेड सुरेंद्रनाथ और अरुण मेहता भी बोली है। तो ये इसमें मेन ये है कि हमको अपना we have to struggle along with our demands। हमारा मांग के लिए जब हम लड़ते हैं, तो जिसका जो लाभार्थी है स्कीम का, उनका भी मांग को लेकर हमको लड़ना है। तभी जाकर ICDS को अगर परमानेंट होगा, तब हमारा मांग भी पूरा होने का संभावना बढ़ेगा। So with this that understanding from the beginning we have been working।
So, as Comrade Sindhu has also referred, and many of you might be knowing, in 2005 itself, we have organized a big convention demanding institutionalization of ICDS. That was the major demand. बाकी जो हमारा मांग है, वेतन बढ़ाना, मानदेय बढ़ाना, पेंशन वगैरह वगैरह, recognition as workers, वो सब है. But in addition to that, the main demand was institutionalization of ICDS, making it a permanent service, like education and health. और इसके लिए हम सिर्फ आंगनवाड़ी फेडरेशन का ही नहीं, we have collected around 2 crore signatures from the people. हम लोगों से, हमारा सेंटर में जो लाभार्थी लोग हैं, जनता है, उनका सिग्नेचर कलेक्ट करके submitted 2 crore signatures to the government. So now we are continuing that fight. After that also in several issues we have been involving the people and the demanding strengthening of ICDS. And in addition to that, we have also demanded, now the issue of creches is coming. So from since many decades, we have been demanding that Anganwadi center should be converted into Anganwadi center cum creches. वो क्रेश आंगनवाड़ी सेंटर में ही बनाने का मांग भी हम बहुत सालों से कर रहे हैं और उसमें क्रेश का काम करने के लिए अलग सा वर्कर को भी ये करने का भी हमारा मांग है. So there should be another creche worker and also आंगनवाड़ी workers should be given a proper training to ensure that they are imparting preschool education. Preschool education, we have recognized that was one of the weak points. Generally, आंगनवाड़ी centers are known as जो खिलाने का सेंटर, उपमा खिलाने का या कुछ न्यूट्रिशन फीडिंग सेंटर्स के रूप में खिचड़ी खिलाने का ऐसा था. But we have been demanding because it is a holistic program, health, education and nutrition and child care. All these things are there. And starting from puberty, जो adolescent girls, जो किशोर बालिका से लेकर गर्भिणी महिला, गर्भवती महिला, फिर उसके बाद में जो lactating mothers and up to 6 months for the child. तो ये पूरा जो ये है और 6 years का तक जो बच्चों का प्री स्कूल एजुकेशन तक ये पूरा एक साइकिल जो बच्चों का विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. So understanding that, we have been demanding that all these aspects of ICT should be strengthened. It should not be just confined to some feeding centers. So for that, preschool education, proper training आंगनवाड़ी workers को मिलना चाहिए. तो वो भी हमने मांग कर रहे थे, क्रश का मांग भी कर रहे थे. So this idea, our federation has been working with this perspective and with this vision for the entire development of the people of our country. तो वो इसको और भी तेज करना, तो it has to be strengthened. हम कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते पूरा समझदारी के साथ सभी स्टेट्स में ऐसा काम हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. Lot of weaknesses are there even today. So in all these aspects we have to study. And second part is that about the organizing the other sections. वो भी comrades have suggested that because this utilizing this judgment that paves the way for raising similar demands and which are already raised. So the legal fight also we can take up at the say for the asas, midday meal workers etc. वो भी एक रास्ता अभी बना है, तो उसको भी ये कर रहे हैं. लेकिन उनका भी जैसा हमारा जो लीगल प्रोविजन ये जजमेंट आया है, उसके पीछे भी हमारा काफी सालों का संघर्ष है, ऐसा नहीं आया. ये जजमेंट को हमारा ये मिला है, तो हमने सोचा कि ये हमारे ही पूरा देश में इसको लेके जाने के लिए एक बड़ा काम हो जाएगा. इसका मैसेज जाने के लिए एक सफलता मिलेगा. वो आके भाषण देने से उसका कामयाबी तब होगा हम लोग इसको असली में वर्कर हेल्पर में ले जाएंगे कि ये हमारे हक में ऑर्डर है और वो ऑर्डर देने वाला जज हमारे प्लेटफॉर्म में आके बोला है कि ये काम आपको करना है. तो ये हमारे लिए और काम के लिए एक मदद मिलेगा. तो ये इसी संदर्भ में किया है.
तो इसलिए हमारा ये जो आने वाले दिनों में एक जो सारे साथियों ने जो बताया कि वो है कि जो हर स्टेट में, एक तो गुजरात के अंदर में वो हाईकोर्ट के ऑर्डर के अंदर वो है और उन्होंने लड़के लिया है। अभी हमारी नसीम बहन है, वो कमेटी मेंबर है, पहली ग्रेजुएटी उन्होंने लिया है कि वो जो अपनी ये ऑर्डर और हमें वो जज को भी बताया पहली ग्रेजुएटी हमारी वर्किंग कमेटी मेंबर ने लिया है, शी गॉट द ग्रेजुएटी। तो वो उसमें और जो है बाकी कर्नाटका का यूनियन ने उन्होंने कोर्ट में नहीं गया, वो वहां पे जमीन पे लड़के 10 दिन का बड़ा पड़ाव करके हमारा वरलक्ष्मी सुनंदा ये लोग है इधर उनके नेतृत्व में, तो वो यूनियन ने लड़के सरकार से लिया और उसका ऑर्डर आया है, उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में करवाने के लिए अभी उसका लड़ाई और आगे ले जा रहे हैं। केंद्र का पैसा अभी दिल्ली के अंदर में भी वो कितने दिनों मैंने कि 1 साल होने वाला है कि वो केंद्र का हिस्से का पैसा नहीं आ रहा है, खाने पर पैसा ढंग से नहीं आ रहे, ये हालत है। तो लड़के जो लिया है वो भी हमें टिका नहीं पाएंगे। तो ये स्थिति में हम लोगों को इसको और ज्यादा मजबूती से लड़ना है। तो ये आने वाले बजट सेशन में भी हम लोग कुछ योजना बना रहे। मैं इसलिए भी बोल रही क्योंकि पंजाब और हरियाणा के साथी भारी संख्या में यहाँ शामिल है, तो उसकी तैयारी भी हमें करना चाहिए। और ये भी नहीं, 2018 में मजदूर और किसान का एकता से वो जो बड़ा रैली हमारे लोगों में यही था कि हमारी मांग वाला नहीं, लेकिन वो हमारी मांगों के लिए ही हमारे पैसों की बढ़ोतरी, वो 2005 सितंबर का रैली के बाद में 11 सितंबर को मोदी ने सबको ऑनलाइन में मीटिंग बुला के घोषणा करने पे मजबूर हुआ। तो आने वाले दिनों में हमारे CITU किसान सभा खेत मजदूर और जो सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन और जो सारे किसान संगठन SKM का भी आंदोलन है। और वो हमारा 14 नवंबर का बाल दिवस में हमने आंदोलन रखा था, उसी में भारी संख्या में लोग हुआ है। और 26 नवंबर में भी हमारे गर्व है, हमारी अभी रिव्यू किया था तो उसमें भी हमारे इतनी 1 हफ्ते के बाद में हमारे ये डर था कि उसमें संख्या कम होगा, लेकिन नहीं हुआ है। आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स की अच्छी भागीदारी उसमें हुआ। तो आने वाले दिनों में वो आंदोलन अगर मजबूत नहीं करेगा तो कोई लीगल वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हर एक का वो हक जो है खाने का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का कानून अभी भी नहीं है, तो वो कानून के लिए आशा वर्कर की लड़ाई है, सबका स्वास्थ्य दिलाने का वो लड़ाई भी हमारी है। और जो मिड डे मील की लड़ाई वो भी हमारी लड़ाई है। तो इसको पूरा करने के लिए ये तभी तो जाके लीगल होगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट आएगा, ऑर्डर आएगा, जाएगा और हमारा तो बजट में कटौती ही होगा। तो ऐसा नहीं होने देंगे, इसको मजबूत कराने वाली जो हमारी लड़ाई होगा। तो ये कैंपेन को लेके हमें इसके आगे बढ़ाना है, तभी जाके कोई भी सेमिनार करोगे तो उसका कोई फायदा होगा। और ये हमारी ये हथियार और इसको लेके हम अपना हक को लेना है। तो मैं अभी इसका जो समापन और धन्यवाद देने के लिए हमारे अध्यक्षा कॉमरेड उषा को बुलाती हूँ। हमारे मेहमान सुरेंद्र नाथ जी जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और जिन्होंने इतनी मेहनत करके हम सब लोगों के लिए इतना अच्छा जो नतीजा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को मजबूर किया है एक आर्गुमेंट्स के साथ। और बाकी हमारे मेहमान जो अपना काम करके जा चुके हैं, हमारे गुजरात राज्य के महासचिव CITU के कॉमरेड अरुण मेहता जी, फेडरेशन के पदाधिकारी, वर्किंग कमेटी मेंबर, हमारे एडवा के महासचिव कॉमरेड मरियम धवले, किसान सभा के नेता हमारे चले गए हैं KP जी, CITU के चले गए हैं सहानी अभी, तो CITU के पदाधिकारी मौजूद हैं।
सभी आपने इस इम्पोर्टेंट सेमिनार में हिस्सा बने और सच में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, और यूनियन के पास एक एक दस्तावेज जो पेश करने का था, जिसको तथ्यों के आधार पे एक इतना अच्छा जजमेंट देने के लिए भी बाध्य होना पड़ता है, जब एक एक चीज फेडरेशन की तरफ से हमारे एडवोकेट के पास पहुंचाना और वो सब तक सभी समय पर देना, सच में बहुत ही अच्छा फैसला हमारे हक में आया है बड़े लंबे समय के बाद। एक पुराना जो जजमेंट की बात किया था कोविड ने, हर बार सरकार यही बोलती थी, ये देखो हाई कोर्ट ने ये बोल रखा, आपका कुछ नहीं हो सकता। कम से कम स्टेट गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मुंह बंद करने के लिए एक ऑर्डर है कि ये हो सकता है, ये हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो इसका हमारा एक, जो बाकी सभी साथियों ने भी बोला है, एक मुख्य जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अप्रैल 2022 का जो ऑर्डर आ चुका है, 2.5 साल हो गए हैं, और हमें उसको जितना सीरियस लेना चाहिए था, 2 राज्यों को छोड़ के अभी तक उसको सीरियस नहीं लिया, जो हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। कितने सारे कानून हैं जो देश की पार्लियामेंट में बनने के बाद भी बस्ते में पड़े हैं, बिना रोड पे लड़े इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। तो इसी तरह ये भी है, अगर लड़ा है, इतना बड़ा अमाउंट दवाया है और गुजरात के अंदर उसका फायदा भी मिला है, हमारा मेंबरशिप दोगुना हुआ है, और सरकार का जो सर्वे हुआ है संगठन के बारे में, हमारा संगठन 1 नंबर पे आया सरकारी सर्वे में। एक आंगनबाड़ी वर्कर से पूछा गया सरकारी सर्वे में, तुम किस संगठन के साथ हो? तो जो लगातार फेडरेशन की तरफ से गाइड भी किया जा रहा है, पत्र भी जारी किए हैं, पेपर भी दिया, लीफलेट भी जारी किया है, तो जो भी राज्यों से साथी हैं यहाँ पे, जो नहीं है उनको भी दोबारा रिमाइंडर दिया जाएगा। तो प्लीज जो इतना बड़ा अचीवमेंट, इसको हमें गंवाए ना। जो साथी रिटायर है उनको तो लाभ दिलाना ही है, बाकी को भी एक विश्वास दिलाना है, एक जो है शेयरटू कर सकते। तो कल हमारे एक साथी बता रहे थे असम के, अन्नपूर्णा जी असम में गई और अधिकारी बोल रहे कि बाकी आए, पर जो CI2 से संबंधित है वो कोई ना आए। हर अधिकारी ने एक एक आंगनवाड़ी वर्कर तक ये पहुंच किया कि किसी भी सरकारी फंक्शन में वो ना आए जो CI2 का मेंबर हो, जो लाल झंडा उठाता हो। तो इतना डर बीजेपी के अंदर आपके आंदोलन ने पैदा किया है, और हर जो मांग पत्र इस बार जो चुनावी जो घोषणा पत्र जारी हुए हैं, हरियाणा वालों की लॉटरी निकली है, उसको याद नहीं था, खुद बीजेपी को भरोसा नहीं था कि हम लोग सरकार